This one is the unit second, and the second topic, that one is the sterilization techniques and its application. The definition of sterilization. Sterilization may be defined as any process that effectively kill or eliminate microorganisms from a surface, equipment, foods, medicines, or biological culture medium. Means sterilization is defined as any process. Means it's a method or the process that effectively kills or eliminates, means remove microorganism from a surface of equipment, foods, medicine और biological culture medium. यानी इस तरह की कोई भी प्रोसेस जिसके थ्रू कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जा सकता है, किल किया जा सकता है या फिर रिमूव किया जा सकता है सरफेस पे से, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, फूड्स हो, मेडिसिन और बायोलॉजिकल कल्चर मीडियम। ठीक है, नाउ it is the process by which all viable form of microorganisms are removed or destroyed। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कि सभी वाइबल फॉर्म्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मारा जा सकता है। इस मेथड को क्या बोला जाता है? आपका स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। स्टेरिलाइजेशन वो टेक्निक है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या एलिमिनेट्स करते हैं सरफेस पर से, फिर वो फूड मटेरियल हो, मेडिसिन हो, बायोलॉजिकल कल्चर हो। ठीक है, और जितने भी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सभी को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है और डिस्ट्रॉय किया जाता है। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, कौन कौन सी स्टेरिलाइजेशन मेथड्स हैं जिसके थ्रू के स्टेरिलाइज किए जाते हैं मटेरियल्स? इसके अंदर आपका सबसे फर्स्ट स्टेरिलाइजेशन मेथड फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसमें फर्स्ट फिजिकल मेथड है, यानी टोटल 3 मेथड आर यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन पर्पस। In this, first one is physical method, second one is chemical method of sterilization, and third one is the mechanical method of sterilization. First, physical method of sterilization includes 3 ways or the 3 sub methods. For in this, first one is dry heat sterilization method. In this method, dry heat is used for the sterilization purpose. Second is moist heat sterilization method. In this, the moist heat or the saturated steam is used for the sterilization of articles. Then C is third one is sterilization by radiation. Different types of radiation is used for the sterilization purpose. Then second is the chemical method, and in this method, first is the gaseous sterilization, means different types of gas is used for the sterilization purpose, and second one is sterilization by disinfectant, means disinfectant is the material or the chemical which is used for the sterilization purpose in pharmaceutical field. Third one is the mechanical method. In mechanical method, the material which to be sterilized is passed through bacteria-proof filters. Means it is directly passed from the bacteria-free proof filter to sterilize the article, culture media, suspension. Okay, this is the 3 method of sterilization. In this, number 1 is physical method of sterilization, second one is chemical method of sterilization, and third one is mechanical method of sterilization. Now, physical methods of sterilization. In this, first one is heat sterilization. Okay, heat sterilization techniques of the process. This heat sterilization, it is most widely used and reliable method of sterilization. ये बहुत widely used and it's a reliable method of sterilization है, involving destruction of enzymes and other essential cell constituents. और ये क्या involve कर रहा है? आपका destruction of enzyme, इसकी वजह से
इस हीट की वजह से आपका डिस्ट्रक्शन होता है एंजाइम्स में, और दूसरी इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। दिस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन कैन बी अप्लाइड ओनली टू द थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स, मीन्स जो कि हीट के इफेक्ट से अपने आप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स हैं। बट इट कैन बी यूज्ड फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल, और इसको किसके लिए यूज किया जाता है, आपका मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मीन्स दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स, एंड सेकेंड वन इज मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है दिस मेथड। In this, first one is dry heat sterilization. 160 to 180 degrees Celsius temperature is used for thermostable products. Clear? And second one is moist heat sterilization technique. In this, 121 to 134 degrees Celsius temperature is used for sterilization of different pharmaceutical products or the material. The efficiency of heat sterilization to inactive the microorganism, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव करने की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, हीट स्टेरिलाइजेशन की, दैट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, इन दिस फर्स्ट वन इज द डिग्री ऑफ हीट एंड द एक्सपोजर टाइम, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको एक्सपोज किया गया है और किस टेम्परेचर पर एक्सपोज कर रहे हैं। Then second one is the presence of water or the absence of water. Two factors पर इफेक्ट कर रही है आपका जो हीट की एफिशिएंसी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो किस पर इफेक्ट करती है, टू पर। फर्स्ट वन इज द डिग्री ऑफ हीट, कितना हीट का टेम्परेचर कितना है और उसका एक्सपोजर टाइम क्या है आर्टिकल का। सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर प्रेजेंस है कि नहीं है, ठीक है। द एक्शन ऑफ हीट will be due to induction of lethal chemicals, ठीक है, जो एक्शन है हीट का ये किस पे डिपेंड करता है, इंडक्शन ऑफ lethal chemicals, lethal chemicals के इंडक्शन पर, ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, किसके एक्शन के थ्रू, वाटर एंड ऑक्सीजन के एक्शन के थ्रू। इफ वाटर इज प्रेजेंट, अगर वाटर प्रेजेंट है, लोअर टेम्परेचर एंड लेस टाइम इज रिक्वायर्ड, अगर किसी भी मटेरियल के अंदर वाटर प्रेजेंट है जिसे कि स्टेरिलाइज करना है, देन द लोअर टेम्परेचर एंड लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू किल द माइक्रोब्स देन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर कंप्लीटली एब्सेंस है, उसकी कंपैरिजन में वाटर प्रेजेंट है, तो आपका लोअर टेम्परेचर और लेस टाइम चाहिए, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। Now, dry heat sterilization process और टेक्निक क्या है, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। It employs higher temperature in the range of 160 to 180 degree Celsius for 2 hours, ठीक है। इसके अंदर जो भी आर्टिकल को स्टेरिलाइज करना है उसको किस टेम्परेचर रेंज पर रखना है, 160 to 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2 घंटे के लिए फॉर 2 hours, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एम्प्लॉयड। अगर 150 टू 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख रहे हैं तो 2 hours से 10 या 15 मिनट्स लेस रखना पड़ेगा। द बेनिफिट ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स का बेनिफिट क्या है, फर्स्ट वन इज गुड पेनेट्रेबिलिटी, जो भी आर्टिकल के अंदर ड्राई हीट की पेनेट्रेबिलिटी है, यानी कि पेनेट्रेट होने की कैपेसिटी, वो क्या है, बहुत अच्छी है। सेकेंड, नॉन कोरेसिव नेचर, नॉन कोरेसिव यानी कि जंग नहीं लगने देगा, कोरोइड नहीं होने देगा मटेरियल को, मींस नॉन कोरेसिव नेचर है इसका। नेक्स्ट, which make it applicable for sterilization glassware and metal surgical instruments। ये दो बेनिफिट्स की वजह से किसमें इसका यूज किया जाता है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन को, कौन से आर्टिकल्स को स्टेरिलाइज करना है इसके अंदर, ग्लासवेयर एंड सर्जिकल मेटल्स को स्टेरिलाइज करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स का। It is also used for sterilizing non-aqueous thermostable liquids,
ठीक है, किसको और स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है? नॉन एक्वस एंड थर्मोस्टेबल लिक्विड्स एंड थर्मोस्टेबल पाउडर्स के लिए भी इसका क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। फर्स्ट वन इज ग्लासवेयर, मेटल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक्स का। एंड सेकेंड वन इज नॉन एक्वस थर्मोस्टेबल लिक्विड्स एंड थर्मोस्टेबल पाउडर्स में यूज किया जाता है। देन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन destroy बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है ये किसको डिस्ट्रॉय करता है? बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन और पायरोजेंस, ठीक है, विच आर वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट बाय अदर मीन्स। दूसरे स्टरलाइजेशन मेथड्स के थ्रू बहुत डिफिकल्ट है उनको मारना, डिस्ट्रॉय करना, एलिमिनेट करना, बाहर निकालना। ड्यू टू दिस इट एप्लीकेबल फॉर स्टरलाइजिंग ग्लास बॉटल। इसकी वजह से ये इसको एप्लीकेबल है स्टेरलाइज करना, ग्लास बॉटल्स को स्टेरलाइज किया जाता है इस टेक्निक्स के थ्रू। विच आर टू बी फिल्ड असेप्टिकली, जिसको कि किसके वे से असेप्टिकली क्या किया जाता है? फिलअप किया जा रहा है, उसके अंदर सॉल्यूशन फिलअप किया जा रहा है, लिक्विड मीडियम फिलअप किया जा रहा है। वो सारे मेथड्स के फिलअप होने के बाद जो ग्लास बॉटल्स है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। Now, apparatus. Which type of apparatus is used for dry heat sterilization purpose? In this first one is the hot air oven. Hot air oven is the apparatus which is used for dry heat sterilization process. Now, hot air oven. This one is the picture of hot air oven. This one is the tray, temperature setting nodes, ऑन ऑफ करने का सिस्टम, ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉट एयर ओवन। इट इज अ मेटेलिक चैम्बर। ये क्या है आपका? एक मेटल से बना हुआ चैम्बर है। एंड द मेटल विच इज यूज फॉर प्रिपरेशन इज स्टील और एल्यूमिनियम। स्टील और एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम आउटर केस बाय थिक लेयर ऑफ ग्लास फाइबर इंसुलेशन। ग्लास फाइबर इंसुलेशन का इसके अंदर क्या किया गया है? मटेरियल प्रोवाइड किया गया है जिससे कि ये इंसुलेट रहे, हीट को अंदर कैप्चर करके रख सके। द डोर इज डबल वॉल। जो डोर है वो है आपके क्या है? डबल वॉल, डबल लेयर में है। एंड इनर साइड, और डबल लेयर में है इसका मतलब कि बीच में मिडल साइड बचा हुआ है। इनर साइड हैव एस्बेस्टॉस गैस्केट, और इनर साइड में किसकी फिलिंग है इसके अंदर? एस्बेस्टॉस गैस्केट की, विच मेक इट एयर टाइट, जिसकी वजह से ये डोर क्या है आपका? एयर टाइट है। एंड प्रिवेंट द हीट लॉस, और बाहर हीट नहीं आ सकती, यानी कि हीट लॉस होने से क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट एयर ओवन टू आर्टिकल, ठीक है। हीट जो ट्रांसफर हो रही है हॉट एयर ओवन से लेके आर्टिकल में बाय कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। ये तीन मैकेनिज्म के थ्रू हीट ट्रांसफर हो जाता है, इधर कंडक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू और कन्वेक्शन के थ्रू। दिस वन इज द फिगर ऑफ हॉट एयर ओवन। अब देख लीजिए, एक थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर है इज फिटेड इन फ्रंट ऑफ द ओवन टू नोट डाउन द टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन, ठीक है। उसको थर्मोमीटर को ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी, जहाँ पे इसकी यानी कि वेंट प्रोवाइड किया है, ओपनिंग प्रोवाइड की जाती है थर्मोमीटर की, वहां पे आपको सेट करना है ओवन के अंदर टू नोट डाउन द टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के ड्यूरेशन में उसका टेम्परेचर क्या रखा आपने, उसको नोट डाउन करने के लिए। हॉट एयर ओवन शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। हॉट एयर ओवन के अंदर ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए। फर्स्ट, every item inside the oven must receive correct exposure of heat, ठीक है। हर आइटम, जैसे ग्लास वेयर है तो सारा ग्लास वेयर, जितना भी ग्लास वेयर आपने उसके अंदर रखा हुआ है, उसकी कंप्लीट सरफेस हीट के लिए एक्सपोज होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, द टेम्परेचर ऑफ स्टेरिलाइजेशन मस्ट अटेन क्विकली एंड बी मेंटेन विथ लिटिल वेरिएशन। जो टेम्परेचर है स्टेरिलाइजेशन का वो क्या है होना चाहिए आपका? कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जितना डिग्री ऑफ स्टेरिलाइजेशन चाहिए
उतना डिग्री आपका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए विथ लिटिल वेरिएशन, बहुत थोड़ा बहुत वेरिएशन होना चाहिए टेम्परेचर में। लेकिन वो अगर 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है तो इस 20 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन में 160 से लेके 180 की रेंज का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्पस। नाउ थर्ड पॉइंट इज एट द टॉप ऑफ द ओवन, ओवन के टॉप पर देयर इज अ वेंटिलेटर सेट है, and on the bottom there is chamber in which heating are fitted। बॉटम में क्या है आपका वेंटिलेटर सेट है, वेंटिलेटर मॉइस्चर को रिमूव करने की कैपेसिटी वाला वेंटिलेटर सेट है। एंड ऑन द बॉटम, और बॉटम में क्या होनी चाहिए आपका हीटिंग चैम्बर, जिसके थ्रू हीटिंग प्रोवाइड करवाई जा सकती है, हीट किया जा सकता है आपका। वर्किंग, ये वर्किंग कैसे करता है? ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन द मटीरियल टू बी स्टेरिलाइज इज प्लेस्ड इन ओवन प्रॉपरली। जो भी मटीरियल को स्टेरिलाइज करना है उसे ओवन में क्या है प्रॉपरली रखना है। प्रॉपरली रखने का मतलब है कि सारे कवरिंग के साथ में प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करते हुए, एंड द डोर इज क्लोज, और डोर को क्या करना है बंद करना है, दरवाजे को बंद करना है। The temperature is adjusted 150 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट टेम्परेचर को कितना एडजस्ट करना है 150 डिग्री सेल्सियस। एंड द वेंटिलेटर इज अलाउड टू रिमेन ओपन। जो वेंटिलेटर है जो कि टॉप में सेट है हॉट एयर ओवन के, इज अलाउड टू रिमेन ओपन, वो खुला रहना चाहिए until the temperature reaches 115 डिग्री सेल्सियस। जब तक के टेम्परेचर कितना पहुंचे 115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिससे कि जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट है आर्टिकल के ऊपर सारा क्या हो जाए रिमूव हो जाए आर्टिकल के। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स मेनली बाय रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। हीट किसके मेथड के थ्रू ट्रांसफर हो रही है? या तो रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर हो रही है या फिर कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी कि करंट के फ्लो के थ्रू, ठीक है, यानी कि हैवी आर्टिकल का को रिप्लेस किया जाएगा आपका लाइट आर्टिकल, लाइट आर्टिकल को हैवी आर्टिकल से रिप्लेस करना है। आर्टिकल का मतलब है हीट से रिप्लेस होता चला जाएगा यहाँ पे। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद द ओवन स्विच ऑफ, ओवन को बंद करना है, एंड अलाउड टू कूल टू अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक क्या करना है इसको कूल करने के लिए छोड़ देना है। फॉर स्टरलाइजेशन एप्लीकेशन, इसके क्या एप्लीकेशन और यूजेस में देख लीजिए आप। फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्टेबल, जितने भी इंजेक्टेबल्स हैं आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जा रहे हैं उनके स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन्स में, जो कि ग्लास से बने हुए मेटल से प्रिपेयर्ड है, उसमें आपका यूज किया जा रहा है। निडल्स, सिरिंज, ग्लास एपरेटस को स्टरलाइज करने के लिए, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज जैसे कि स्कैल्पेल, सीजर, नाइफ, स्पैचुला एंड ब्लेड्स को स्टरलाइज करने के लिए आपका किसका यूज किया जाता है? हॉट एयर ओवन का। ड्रग्स विच आर स्टेबल एट 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, इस तरह के ड्रग्स, फ्रूट मटेरियल, रॉ मटेरियल जो कि 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या है आपका स्टेबल है। एंड थर्मोस्टेबल मटेरियल, द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर असेप्टिक प्रोसेसिंग, असेप्टिक प्रोसेसिंग के लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट जैसे कि मोर्टार, पेस्टल्स एंड टाइल्स। नेक्स्ट, दिस मेथड इज ऑफ पर्टिकुलर वॉल्व इन केस ऑफ ऑयली इंजेक्शन, पाउडर, फार्मास्यूटिकल्स एंड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, ये वॉल्व नहीं है, वैल्यू है, ठीक है। इस मेथड की पर्टिकुलर वैल्यू है किसके लिए? किसको स्टेरिलाइज करने के लिए? ऑयली इंजेक्शन को स्टेरिलाइज करने में, पाउडर्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, कुछ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन को स्टेरिलाइज करने के लिए, और लुब्रिकेंट्स को स्टेरिलाइज इस मेथड के थ्रू, मींस ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू स्टेरिलाइज किया जाता है। प्रिकॉशन क्या क्या रखने हैं? ओवरलोडिंग शुड बी अवॉइडेड। जो भी ओवरलोडिंग है आपको क्या करनी है? अवॉइड करनी है, जिससे कि जो भी ग्लास वेयर आपको स्टेरिलाइज करना है, हर आर्टिकल हीट के कांटेक्ट में आना चाहिए, लूजली पैक होना चाहिए ओवन में।
sufficient space between articles to provide uniform distribution of heat. Sufficient space होना चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको क्या है, ओवरलोडिंग को अवॉइड करना है. थर्ड पॉइंट, टू प्रिवेंट breakage of glass apparatus, it should be kept in mind to cool down the oven temperature. ओवन का जो टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक कूल डाउन करना है. उसके बाद भी ओवन का डोर खोल के छोड़ देना है. जब वो बिल्कुल ही कूल डाउन हो जा रहा है आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब आपको ग्लासवेयर्स उठा के डायरेक्टली असेप्टिक रूम्स में रख देना. ठीक है, ये आपको इस वे से आप क्या है, जितने भी ग्लासवेयर है, ग्लास एपरेटिव्स है, उसका ब्रेकेज से क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जाता है, रोका जा सकता है. ओपनिंग ऑफ ग्लास आइटम शुड बी प्लग्ड विथ नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन. ठीक है, ओपनिंग जैसे बीकर है, बीकर की जो ओपनिंग है उसको सबसे पहले किससे प्लग करना है, किससे फिलअप करना है, आपका नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन से. एंड फर्दर रैप्ड विथ ब्राउन पेपर, और उसके बाद में उसको फिर से रैप कर देना है किससे, ब्राउन पेपर. ये आपको क्या है, प्रिकॉशन रखने हैं क्या करते समय, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक व्हाइल यूजिंग फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स. इसके लिमिटेशंस देख लीजिए, क्या क्या लिमिटेशन है इसमें. इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर थर्मोलेबाइल मेडिसिन. थर्मोलेबाइल का मतलब है आपका थर्मोस्टेबल नहीं होना. थर्मोलेबाइल हीट सेंसिटिव मटेरियल के जो मेडिसिन हैं उसके लिए आपको क्या है, यूज नहीं करना है. रबर के लिए यूज नहीं करना और प्लास्टिक के लिए यूज नहीं करना. मीन्स इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर थर्मोलेबाइल मेडिसिन, रबर्स एंड प्लास्टिक. This one is the first limitation. Now second one, it is unsuitable for surgical dressing. Surgical dressing के लिए ये क्या है, unsuitable sterilization techniques या method है. Because why? It destroy natural moisture present in the fiber. जो फाइबर के अंदर नेचुरल मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, एंड मेक देम ब्रिटल एंड डिस्कलर्ड. और जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, वो ब्रिटल, बहुत इजीली टूटने वाले, एंड डिस्कलर्ड, उनका जो कलर है, व्हाइट कलर है, वो व्हाइट कलर के नहीं रहेंगे, डिस्कलर, डिफरेंट कलर्स के हो जाएंगे. नाउ सेकेंड स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स ऑफ फिजिकल मेथड, जो प्रोसेस है सेकेंड वन इज मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन. मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इंक्लूड द यूज ऑफ स्टीम. It includes the use of saturated steam in the range of 121 to 134 degree Celsius temperature is used. ये टेम्परेचर का यूज करके सैचुरेटेड स्टीम को क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है. ये आपका किसमें होता है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस. स्टीम अंडर प्रेशर इज यूज्ड टू जनरेट हाई टेम्परेचर. ठीक है, स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम एक प्रेशर के अंडर में जनरेट करने के लिए हाई टेम्परेचर नीडेड फॉर स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन के किसका यूज करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर ऑब्टेन करना पड़ता है. अगर हमें स्टीम जनरेट करनी है, प्रेशर, स्टीम अंडर प्रेशर जनरेट करना है. सैचुरेटेड स्टीम एक्ट एज एन इफेक्टिव स्टेरिलाइजिंग एजेंट. जो सैचुरेटेड स्टीम है, ठीक है, स्टीम वो किसके लिए एक्ट कर रही है, as an effective sterilizing agent. It works as an effective sterilizing technique agent. Now, for this purpose, autoclave is the apparatus which is used for moist heat sterilization process. Okay, in this first one is microorganism can be killed using hot water, boiling water, steam at atmospheric pressure, एंड स्टीम अंडर प्रेशर. स्टीम अंडर प्रेशर किसमें यूज की जाती है, ऑटोक्लेविंग में. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड किया जाता है किसके वे से, इधर इट बाय यूजिंग हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर, स्टीम अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्ट्रीमिंग जिसको बोलते हैं, दैट मैटर इज कॉल्ड एज स्ट्रीमिंग, एंड स्टीम अंडर प्रेशर थ्रू द ऑटोक्लेविंग. मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इज पावरफुल देन ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन. मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड जो है
is the powerful than dry heat sterilization process. Why? First one is the reason back of this is first, penetration power of heat is more as compared to dry heat. ड्राई हीट की कंपैरिजन में जो पेनेट्रेशन पावर है किसका, मॉइस्ट हीट का, वो क्या है, बहुत ज्यादा है. सेकेंड, थर्मल कैपेसिटी ऑफ स्टीम, जो थर्मल कैपेसिटी है स्टीम की, गर्म करने की कैपेसिटी इज मच हायर देन द थर्मल कैपेसिटी ऑफ ड्राई हीट. ड्राई हीट की थर्मल कैपेसिटी से ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, आपका थर्मल स्टीम की. ठीक है. थर्ड, ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के ड्यूरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारे जाते हैं ड्यू टू कोगुलेशन, जमने की वजह से, और डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन का क्या हो जाता है, डीनेचर, प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिविंग सेल में प्रोटीन प्रेजेंट है. And the coagulation occurs at lower temperature due to the presence of moisture. और जो coagulation है इसका आपका लोअर टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स में हो रहा है, प्रोटीन्स का, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर की वजह से. मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन सब हेड्स, उसको और किस हेडर्स के अंडर में पढ़ा जाता है, इस टेक्निक्स के अंडर में, और कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं, इसके प्रोसेस कौन कौन से आते हैं, इसमें देख लीजिए आप. फर्स्ट वन इज ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग मेथड. सेकेंड, हीटिंग विथ बैक्टीरिसाइड्स, बैक्टीरिसाइड्स जो केमिकल्स हैं उसके थ्रू हीट करना, उसके साथ में हीट करना. इलेक्ट्रिक बॉइलिंग वाटर स्टरलाइजर, इलेक्ट्रिक बॉइलिंग वाटर, ठीक है, स्टरलाइजर का यूज करना. हीटिंग विथ बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में ही हीट करना आर्टिकल को. टिंडालाइजेशन, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टाइम पर कुछ दिनों के लिए हीट करना. पेस्चुराइजेशन, हाई टेम्परेचर पर हीट करके इमीडिएटली फिल अप करना आर्टिकल. एपरेटस ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में. इसमें देख लीजिए, ऑटोक्लेव इज एन स्ट्रॉन्ग सिलिंड्रिकल चैम्बर. जो ऑटोक्लेव है, दिस वन इज ऑटोक्लेव, और ये ऑटोक्लेव आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग सिलिंड्रिकल, ठीक है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ चैम्बर है. एल्यूमिनियम अलॉय या फिर स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं प्रिपरेशन में. ऑन इट लिड देयर आर वेरियस कंट्रोल्स, उसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स हैं आपका, जिस तरह से देख लीजिए, प्रेशर, टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, ये आपके वेंट प्रेजेंट हैं, ये बोल्ट हैं, और ये आपके विंग बोल्ट्स होते हैं जिसको, ठीक है, ये प्रेजेंट है. ऑन इट लिड देयर आर वेरियस कंट्रोल्स, जैसे कि स्टीम वेंट, स्टीम वेंट का मतलब एक ओपनिंग जिसके थ्रू कोई स्टीम को बाहर और बाहर निकाला जा सकता है. प्रेशर गेज, प्रेशर कितना मेंटेन करके रखना है उसका कंट्रोलिंग नॉब. सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व, एंड समटाइम्स थर्मोमीटर इज आल्सो, यानी इंसर्ट करने के लिए एक ओपनिंग दे रखी है इसके अंदर. इनर साइड ऑफ द लिड हैज अ रबर गैस्केट, और जो लिड है उसके अंदर की तरफ क्या है आपका, रबर गैस्केट है, रबर लाइनिंग है, विच मेक इट एयर टाइट, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, एयर टाइट, फिक्स हो जाता है, और आपका जितना भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है और टेम्परेचर जो रेज कर रही है स्किन, वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाती. टू कीप इट्स कवर इन अ पोजिशन, उसके कवर को पोजीशन पे रखने के लिए इट इज प्रोवाइडेड विथ विंग नट्स, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, विंग नट्स और होल्ड प्रोवाइड कर गए किए गए हैं चैम्बर के इनसाइड में. देयर इज परफोरेटेड मेटेलिक बास्केट, बास्केट है एक मेटेलिक बास्केट, यानी कि मेटेलिक जाली, जाली बास्केट, और वायर कंटेनर, ठीक है, इन विच द मटेरियल इज टू बी स्टेरिलाइज्ड पैक्ड इनसाइड. उसके अंदर में जो भी मटेरियल को स्टेरिलाइज करना है वो आपको क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा. एंड अ गैस्केट इन विच इलेक्ट्रिकली हीटेड एलिमेंट आर फिटेड, और एक ऐसा गैस्केट है जिसके अंदर की इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स
जिसके थ्रू बॉइलिंग होगी वाटर में, उसको फिट किया जाता है। एप्लीकेशंस एंड यूजेस, इसका एप्लीकेशन क्या है और यूज क्या है। दिस मेथड इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लास apparatus एंड कंटेनर। कंटेनर्स और ग्लास apparatus के लिए स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज की जाती है। दिस मेथड प्लास्टिक स्क्रू कैप्स, रबर लाइन क्लोजर्स, रबर ग्लव्स मस्ट ऑटोक्लेव। ये सारे जितने भी प्लास्टिक के आइटम्स हैं, रबर के हैं, क्लोजर्स हैं, ग्लव्स है, सबको स्टेरिलाइज किया जाता है किसके थ्रू, ऑटोक्लेव के थ्रू। इट इज सुटेबल मेथड फॉर इंजेक्टेबल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन और सॉल्यूशन के लिए ये क्या है, आपका सुटेबल मेथड है। सर्जिकल ड्रेसिंग कैन बी ऑटोक्लेव्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन, और सर्जिकल ड्रेसिंग को भी ऑटोक्लेव किया जाता है किसके लिए, स्टेरिलाइजेशन पर्पस। नाउ वर्किंग, ये किस तरह से वर्क करता है। द परफोरेटेड मेटेलिक चैम्बर, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मेटेलिक चैम्बर है नीचे की साइड उसको बाहर निकाला, एंड वाटर इज कीप अप टू द लेवल, और उसके अंदर लेवल मेंटेन है, उस लेवल तक आपको वाटर लेवल का मार्क मेंटेन कर रखा, उन्होंने लगा रखा है, वहां तक पानी भरना है, सो दैट इट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ परफोरेटेड बॉटम चैम्बर। जो परफोरेटेड चैम्बर है जिसके ऊपर की आप क्या फिलअप करेंगे, जो भी स्टेरिलाइजिंग मटेरियल आर्टिकल्स हैं, रबर, ग्लव्स, टू बी स्क्रू, ये सब ग्लास वेयर, ग्लास एपरेटस, वो सब फिलअप करके रखेंगे, तो उसका जो लोअर साइड है, लोअर बॉटम है, वो किससे, वाटर से टच नहीं होना चाहिए। द मटीरियल टू बी स्टेरिलाइज इज लूजली पैक, लूजली पैक करना है, एंड देन प्लेस इनटू द चैम्बर, उसके बाद चैम्बर में रखना है। कैप्स ऑफ बॉटल फ्लूइड, अगर किसी फ्लूइड को, किसी प्रिपरेशन को स्टेबलाइज करना है, तो बॉटल के अंदर फ्लूइड को भरना है, उसके बाद में उसका कैप लगा देना, ठीक है। शुड बी स्क्रू डाउन टाइटली, टाइटली पैक करना है, सो दैट देयर इज नो डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, जिससे कि उसका किसी भी तरह का एक्सप्लोजन का चांसेस ना रहे, क्योंकि जो ये है ऑटोक्लेव है, इंटरनल प्रेशर को बैलेंस करता है आउटसाइड प्रेशर से। ओके, द लिड इज पुट विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, नट्स एंड बोल्ट, की वजह से जो लिड है उसका कवर है उसे कवर अप करना है। द वेंट इज ओपन, अभी स्टार्टिंग में जो ओपनिंग है स्टीम को आउटसाइड जाने के लिए वो खुली रखनी है। द ऑटोक्लेव इज स्विच्ड ऑन, ऑटोक्लेव को ऑन कर दीजिए, एंड वाटर इज अलाउड टू बॉइल, अब वाटर का बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। द स्टीम इज पास्ड फ्रीली फ्रॉम द वेंट फॉर 5 मिनट, 5 मिनट्स के लिए जो स्टीम है आपका वो क्या है, फ्रीली पास होनी चाहिए, फ्रीली बाहर निकलनी चाहिए ऑटोक्लेव में से, वेंट के थ्रू यानी ओपनिंग के थ्रू। व्हेन होल एयर इज रिमूव, उसके बाद कंप्लीटली जितनी भी एयर है रिमूव हो जाएगी, वेंट इज क्लोज, वेंट को बंद कर दीजिए, ओपनिंग को बंद कर दीजिए, एंड प्रेशर इज अलाउड टू राइज अप टू द 10 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये प्रेशर आपको कितना मेंटेन करना है, उसके लिए प्रेशर गॉज दे रखे हैं, उसके अंदर प्रेशर मेंटेन आपका वो फिट कर रखा है, टेम्परेचर और प्रेशर मेजर करने के लिए। बॉटम प्रेशर अलाउ एक्सपोजर ऑफ होल ऑफ द कंटेंट, जो भी बॉटम प्रेशर है, ठीक है, वो कितना अलाउ करता है, 115 to 116 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो भी आर्टिकल को स्टेरिलाइज करना है उसको क्या करना है, इसकी सरफेस को एक्सपोज होने देना है 115 to 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स के लिए। स्विच ऑफ, बंद कर दीजिए ऑटोक्लेव को, एंड अलाउड टू कूल अंटिल द प्रेशर फॉल्स टू 0, जब तक कि प्रेशर आपका 0 नहीं हो जाएगा आप उसकी लिड को खोल नहीं पाएंगे। वेंट को ओपन करना है, अगर वेंट को आपने ऊपर नहीं किया, ठीक है, तो वो प्रेशर की वजह से लिड खुल नहीं पाएगी। द स्टेरिलाइज्ड मटेरियल शुड बी केयरफुली कलेक्टेड बाय ओपनिंग द लिड, और लिड को ओपन करके आप जो स्टेरिलाइज्ड मटेरियल है उसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ लिमिटेशन, मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स ऑटोक्लेविंग के थ्रू लिमिटेशन क्या है। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंस, ये मेथड थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए क्या है, यूज नहीं की जाती है।